ایک دن کا قصہ ہے۔ شہر سرمدان میں ایک دولتمند اور باوقار شخص رہتا تھا جس کا نام میر ادریس تھا۔ وہ ذہین، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے آنا جانا سلطنت کے دربار میں معمول بن گیا۔ سلطان سرور کو میر ادریس کی باتیں بہت پسند آئیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمدردانہ اور عقل مندی سے مشورہ دیتا اور رعایا کی بھلائی کے لیے باتیں کرتا۔ جب بھی کسی مشکل نے سر اٹھایا، سلطان سب سے پہلے میر ادریس سے رہنمائی لیتے۔ وقت کے ساتھ سلطان کا اعتماد میر ادریس پر ایسا جم گیا کہ کسی اور وزیر یا امیر کو وہ اتنا قریب نہ لاتا۔ محل کے محافظوں کو حکم تھا کہ جب بھی میر ادریس چاہے اندر آ سکے، اسے رکا نہ جائے اور پوری عزت کے ساتھ پیش آئے۔ یہ حالتیں دربار کے ایک وزیر امیر ناصر کے لیے برداشت سے باہر تھیں۔ امیر ناصر چالاک اور حسد پسند تھا۔ اسے کسی طور قبول نہ تھا کہ سلطان اس کے بجائے میر ادریس پر بھروسہ کرے۔ اس نے ٹھان لیا کہ کسی طرح میر ادریس کو سلطان کی نظر میں گرانا ضروری ہے۔ وہ دن رات سوچتا رہا اور آخرکار ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن جب سلطان تنہا محل کے ہال میں بیٹھے تھے تو امیر ناصر قریبی ہو کر بڑا مہذب انداز میں بولا، جان عالم، آپ کی سلامت رہتی دل کی دعا ہے۔ میری آج جانے گزارش ہے، ایک معمولی بات عرض کر دوں؟ سلطان نے محبت سے کہا، کہو۔ امیر نے آہ بھر کر کہا، حضور، سلطنت کو دو خطرات درپیش ہیں۔ اول یہ کہ جو لوگ حقیقتاً عزت کے مستحق ہیں انہیں وہ مقام نہ مل رہا۔ دوم یہ کہ بعض چھوٹے لوگ جن کے پاس علم و وقار نہیں، انہیں اونچا اٹھا کر آپ کے قریب بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کیونکہ اہل دانش نہیں، فائدہ مند مشورہ نہیں دے سکتے۔ سلطان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور انہوں نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ امیر نے مضبوط لہجے میں کہا، حضور، میرا اشارہ میر ادریس کی طرف ہے۔ یہ شخص بہت چالاک اور دو رخ ہے۔ گاؤں کا ہر آدمی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتا ہے۔ اگر ایسا آدمی آپ کا مصاحب بنے تو لوگ بدگمان ہوں گے۔ سلطان نے صبر سے سنی اور پھر سکوت میں کہا، ہم نے میر ادریس کو جانچا ہے۔ اس کی دی ہوئی نصیحت ہر بار درست ثابت ہوئی۔ اگر تم یہ الزامات لگاتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ ثبوت لاؤ، ورنہ جو سزا ہم تمہیں دیں گے وہ تم بھول نہ پاؤ گے۔ امیر ناصر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ گھبرا کر محل سے رخصت ہوا۔ راستے میں اس نے خود سے کہا کہ اگر میر ادریس کے خلاف ثبوت نہ لے آیا تو اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ امیر ناصر گھر پہنچ کر ہر چالاکی پر غور کرنے لگا۔ آخرکار اس کے کان میں ایک شیطانی مشورہ سرگوشی کی طرح آیا۔ شہر کی ایک بوڑھی عورت تھی، لوگ اسے خزاں ماں کہتے تھے۔ جھوٹ اور مکاری میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ امیر نے ایک آدمی بھیجا اور خزاں ماں کو دربار میں بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوئی، امیر کو دعا دے کر بولی، بادشاہ کا سایہ ہمیشہ قائم رہے۔ بتاؤ بیٹا، کس مصیبت نے تمہیں ستایا ہے؟ امیر نے اپنا حال سنایا اور کہنے لگا، اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ میر ادریس کو ذلیل کر کے لاؤں۔ خزاں ماں کے چہرے پر حرکت آئی اور اس نے کہا، خدا کرے آج میری قسمت کھلے، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ بوڑھی عورت نے عاجزی سے کہا، اے حضور، میری جان آپ کے قدموں پر نچھاور ہے۔ مجھے ایک حکم دیجیے، میں خواجہ کو بدنام کرنے کے لیے 1000 چالیں آزما دوں گی۔ آپ سکون سے اپنے محل میں آرام کریں، باقی کام میرے سپرد کر دیجیے۔ وہ ناتواں مگر چالاک بوڑھی پھٹے پرانے چیتھڑے اوڑھے لٹیاں سہلاتی ہوئی دھیرے دھیرے میر ادریس کے مکان کے دروازے تک پہنچی۔ جب وہ اندر جانے لگی تو صحن کا دربان رشید نے روک کر کہا، بوڑھی ماں، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ بوڑھی نے نفرت سے اسے گھورا اور چیختے ہوئے بولی، ارے بدتمیز، تیرے پاؤں تلے زمین ٹوٹ جائے، میں میر ادریس کی بیوی سے ملنے آئی ہوں، تو مجھے روکے گا کون؟ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے دروازے کی طرف دھکا دیا، مگر رشید نے اسے پکڑ کر کہا، ماں جان، آپ ہماری نانی جیسی ہو، خاطر میں رکھا گیا ہے۔ خواجہ ابھی گھر پر نہیں اور میر صاحب کی زوجہ اجنبیوں سے اکیلے نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنا راستہ لے لیجئے، ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ بوڑھی نے تماشا کھڑا کر دیا، لٹی پھینک کر زمین پر بے ہوشی کی اداکاری میں پڑ گئی اور زور زور سے چیخنے لگی، لوگو، آریا، اللہ کی پناہ، یہ دربان مجھے مار رہا ہے، اسے روک دو، اس نے میری ہڈیاں توڑ دیں، میرے بچے بے سامان رہ جائیں گے۔ اس کے شور پر راہگیروں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ سب نے رشید کو تن سے دیکھا اور اس پر الزام لگایا کہ وہ بوڑھی کے ساتھ بےہودہ سلوک کر رہا ہے۔ رشید نے بارہا معافی مانگی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چالاکی کر رہی ہے، مگر کسی نے سنی نہ۔
ये हलचल मीर अदरीस की ज़ौजा ज़ाहरा के कान तक पहुंची। वो दिल नर्म और रहम दिल थीं। फौरन 2 लौंडी भेजी गईं कि बूढ़ी को वकार से मेरे सामने लाया जाए, और दरबान को कहा कि अगर दोबारा किसी औरत को धक्के दिया तो नौकरी से बर्खास्त समझा जाए। लौंडियों ने बेदरंग बूढ़ी को ज़ाहरा के हुजरे तक पहुंचाया। ज़ाहरा ने बूढ़ी को आंसुओं से भीगा, फटे कपड़ों में लिपटा देखा तो दिल पिघल गया। आंखों में हमदर्दी लिए बोलीं, माँ जान, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बताओ क्या दुख है, बताओ क्यों इतने मिस्कीन हालत में हो। बूढ़ी ने अपना ड्रामाई किस्सा सुनाया। बेटी, अल्लाह तुझे उम्र दराज दे। मैं बहुत तंगदस्त हूँ। बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं। हम कभी खुशहाल थे। मेरे शौहर जुआ खेलता था, हमारे पास आराम था। फिर एक दिन वो घोड़े की गाड़ी तले आ गया और जान कर गया। लोगों ने हमें धोखे से सब कुछ छीन लिया। जब तक कुव्वत थी मेहनत की, मगर अब बीमार हूँ, बेबस हूँ। सोचा मीर इदरीस से मदद मांगूं, मगर तुम्हारे दरबार ने मुझे धक्का दिया और मैं रुंजीदा होकर निकल पड़ी। ज़ोहरा ने ये सुनकर आंखें भर लीं। बूढ़ी की कहानी में एक ऐसा मलाल था कि सुनने वाला बेअख्तियार रो पड़े। ज़ोहरा ने प्यार से कहा, सब्र करो माँ, अल्लाह जो दे वो बेहतर है। मैं चाहूँ तो तुम्हें देने को बेहद हूँ, मगर मेरे खावंद आज महल गए हैं, शायद जल्दी वापस आएं। बूढ़ी रात भर वहीं ठहरी। इत्तेफाक ये हुआ कि मीर इदरीस शाम तक ना लौटे। जब अंधेरा घन रहा तो बूढ़ी ने थोड़ा बेचैन होकर कहा, बेटी, तुम्हारा शौहर अभी तक महल से वापस नहीं आया। मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में कोई नहीं जो इनके लिए पानी तक दे। मुझे इजाज़त दो कि जाऊं और फिर आकर दिखा दूंगी कि मैंने आकर भी मदद मांगी थी। ज़ोहरा ने बूढ़ी को गले लगाकर कहा, अम्मा, आप ये शाम की चादर ले लीजिए, ये बहुत कीमती है। मेरे शौहर ने मीर अदरीस को तोहफे में दी थी। इसके किनारों पर मोती नजर आते हैं। बाजार में आप इसे बेच दें तो काफ़ी रकम मिल जाएगी। कल सुबह ज़रूर आइए, मेरा शौहर घर पर होगा। मैं आपके लिए पैसे का बंदोबस्त कर दूंगी। बूढ़ी के मुंह पर मुस्कुराहट फूट आई। उसने चादर संभाली, दुआएं दी और सर झुकाकर महल से रुखसत हो गई। उसकी आंखों में चमक थी। ये कामयाबी उसके लिए खजाने जैसी थी। सीधा वो अमीर नासिर के घर पहुंची। चांदी की झिलमल में लिपटी चादर फर्श पर फेंक कर फखर से बोली, हुजूर, काम हो गया। ख्वाजा की ज़ौजा ने खुद मुझे ये चादर दे दी। अमीर नासिर की आंखों में खुशी की रोशनी छलक गई। चादर अपने बाजुओं में दबाकर उसने बूढ़ी को सूरत अनाम से नवाजा और फौरन शाही दरबार की तरफ रवाना हुआ। महल पहुंचकर वो सुल्तान सरवर के हजूर पेश हुआ और चादर उठाकर दिखाई। हुजूर, ये वही चादर है जो आपने मीर अदरीस को इनायत की थी। सुल्तान ने गौर से चादर को देखा। चेहरे पर संजीदगी छा गई। यही है, मगर ये चादर यहां कैसे पहुंची? उसके लहजे में हैरत थी। अमीर नासिर ने नुमाइश से कहा, हुजूर, मीर इदरीस की ज़ौजा ने इसे बाजार में ऊंचे दामों बेचते देखा गया। मैंने सोचा कि ये तोहफे की बेइज्जती है तो इसे आपके हुजूर ले आया। सुल्तान के मुंह तंग हो गए। शबो रोज में कभी इतने मुश्तइल न थे। इसी लम्हे उनके दिल में शक ने जगह बना ली। सुबह होते ही उन्होंने मीर इदरीस को हाजिर तलब किया। सुबह इतना जल्द बुलाने की कोई वजह थी, मगर सुल्तान का गुस्सा उसे लाजिम समझा रहा था। मीर इदरीस बेचैन मगर बावकार अंदाज में महल पहुंचा, झुककर सलाम किया और बोले, हुजूर वाला, आपका गुलाम हाजिर है। सुल्तान ने बेरहमी से चादर उसके सामने फेंक दी और कहा, देखो, ये तुम्हारी ही चादर है। हमें बताया गया है कि तुम्हारी बेगम इसे बाजार में नीलाम कर रही थी। हमें ये बर्ताव किसी सूरत कबूल नहीं। तोहफे की तौहीन जुर्मे अजीम है। मीर इदरीस का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो जब्त रखते हुए बोले, हुजूर, ये मुमकिन नहीं। ये बात सरासर बेअसास है। मेरी बेगम आने चश्मे सुल्तान कभी इस किस्म की हरकत न कर सकती। उसके लहजे में टपकती हुई तकलीफ थी। न सिर्फ अपनी बेगुनाही का दुख, बल्कि इस एतबार का सांस टूटने का सदमा भी था जो सुल्तान ने उस पर रखा था। सुल्तान ने बेकाबू होकर कहा, ठीक है, अगर यह साबित ना हुआ तो सजा मौत है। उसने फौरन जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि मीर इदरीस को गिरफ्तार करके फौरन तख्ते अदालत पर लाया जाए। महल के हॉल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। अनगिनत आंखें मीर इदरीस पर जमी रहीं और वो शख्स
जिसे कभी इज्जत व एतमाद का अमीन जाना जाता था, अब अपने मुकद्दर के हवाले था। दरबार में घबराहट और हैरत की लहर दौड़ गई। बहुत से लोग मीर इदरीस की पाकबाज तगोदो और अमीर नासिर की चालाकियों को जानते थे, मगर सुल्तान के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। लोग खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे जब जल्लाद जलाल ने मीर इदरीस का बाजू पकड़ा और उसे ताला बांधकर बाहर ले जाने लगा। जलाल, जो दिल में नरम था, मीर इदरीस के कान में सरगोशी से बोला, बेचारा न समझो, खौफजदा मत हो। ये अहकाम शिताब जन में दिए गए हैं। मैं तुम्हें मरवाने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अपने घर छुपा दूंगा। जब हालात साजगार होंगे, मौका आया तो तुम्हारी जान के लिए फरियाद करूंगा। मीर इदरीस ने जलाल की आंखों में सच्चाई देखी और एक छोटी सी उम्मीद दिल में जाग उठी। जब मीर इदरीस को ले जाया गया तो उसकी बेगम ज़ाहिरा को खबर पहुंची। वो कानों पर हाथ रखकर नहीं बैठी सकती। दिल में बेबसी भर आई, मगर ईमान मजबूत था। ज़ाहरा ने सुकून की आवाज में कहा, अल्लाह हमारे गवाह हैं, मैंने वो चादर एक बेबसी बूढ़ी को अता की थी। ये आजमाइश है, हम सब्र करेंगे। दोस्त ने उसकी हिम्मत सुनी और दुआ करके वापस लौटा। ज़ाहरा ने नकाब ओढ़ा और दरबार में जाने का फैसला किया। उसने खामोशी से महल की राह ली, जहां अमीर नासिर बादशाह के करीब खड़ा था, खुद को बोझला हुआ और शकूक में लिपटा हुआ। ज़ाहरा ने आहिस्तगी से पुकारा, इंसाफ, ए आदिल बादशाह, इंसाफ चाहती हूं। दरबार में सन्नाटा टूटा और हर आंख उसकी तरफ फटकी। सुल्तान ने हुक्म दिया, बात बयान करो, हम इंसाफ करेंगे। ज़ोहरा ने धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ी, नकाब हटाया और कहा, यही वो मक्कार है जिसने मेरे शौहर के खिलाफ साजिश की। उसने मेरे नाम पर झूठ बोला कि मैं उसकी बेगम नहीं हूं, और उसने मेरे घर में आए हुए सोने चांदी के तोहफे को किसी तरह बाजार में पहुंचा दिया। अमीर नासिर ने घबराकर कस्में खाईं और कहा कि वो उस औरत को नहीं जानता। ज़ाहरा ने उसे बेनकाब किया और कहा, तुम अपने अल्फाज कागज पर लिखो ताकि बाद में तुम मुकर न सको। वजीर ने कांपते हाथों से लिखा, मैंने उस औरत को न देखा न पहचाना। जब तहरीर सामने रख दी गई तो ज़ाहरा ने पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में कहा, यह झूठ है, मैं मीर इदरीस की बेगम हूं। मैंने वो चादर एक मजबूर बूढ़ी को दी थी। बादशाह ने अपनी अदालत में फैसला सुना दिया। अमीर नासिर की साजिश बेनकाब हुई तो उसके लिए इताब का हुक्म सादिर हुआ। सल्तनत के कानून के मुताबिक सज़ा उसके किए के मुताबिक मुकर्रर की गई। बूढ़ी को, जिसने साजिश में हिस्सा लिया था, सज़ा देने का हुक्म भी सादिर हुआ, मगर सुल्तान ने हुक्म दिया कि इंसाफ हल्का भी ना हो मगर निहायत गैर इंसानी तफसीलात से बचा जाए। सज़ा अवामी इगरत के लिए मुकर्रर की जाएगी। अमीर नासिर को उसके गुनाहों का बदला दिया गया और उसकी तमाम जायदाद मीर इदरीस को सौंप दी गई। जल्लाद जलाल ने बाद में बताया, मैंने अपने दिल की सुनी और हुक्म का साफ मतलब समझा। मैंने मीर इदरीस को मारा नहीं बल्कि छुपा दिया। सुल्तान ने जलाल के इस अमल को शुजाअत समझा और उसकी हिम्मत के सिले में मोतियों की माला से सरफराज किया। दरबार में खुशी और नदामत दोनों के मिले जुले जज्बात नजर आए। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुराते थे और बहुत से लोग इंसाफ की इस नई सुबह से दिल बहलाए हुए थे। कुछ दिनों के बाद सुल्तान ने मीर इदरीस को ना सिर्फ इजाला सितम करके बेगुनाही से बरी किया, बल्कि उसे अपना मुशीर आज़म मुकर्रर किया। अमीर नासिर की सारी दौलत और मनसब मीर इदरीस के सुपुर्द कर दी गई, ताकि वो अपनी अक्ल व इंसाफ से वही हुक्मरानी संवार सके जिसके लिए वो जिंदगी भर मेहनत करता आया था। उस दिन से सरमदान की अदालत में अदल और रहमत की आवाज़ बुलंद हुई और एक सच्चे इंसान की बहाली ने लोगों के दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी।